हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार, लेक्चर्स इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडो, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम रिटेल ट्रेडर के अंतर्गत डिपार्टमेंटल स्टोर यानी फुटकर व्यापार और फुटकर व्यापार के प्रकार में विभागीय भंडार के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करें। टॉपिक का नाम है डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय भंडार। डिपार्टमेंटल स्टोर, it is a store owned by a retailer organization which features products of a wide range. These products are usually categorized as per their type, and sometimes departmental stores are based on the type of product itself. For example, a departmental store may feature food items, clothing, stationery, cosmetics, etc., or it may feature a variety of only one of these items but multiple brand of it. The concept was introduced so that consumer could purchase all of their necessary product from one destination instead of having to go to multiple stores. Departmental store may be an individual entity or it can be a part of a business chain such as Walmart, Big Bazaar, etc. Let us look into the various features and type of departmental stores that exist. हिंदी में विभागीय भंडार अर्थ, इस पद्धति के अंतर्गत एक ही दुकान को अनेक भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग कुछ विशेष वस्तुओं का विक्रय करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी विभागों से ग्राहकों की जरूरत पूरी हो जाती है। उन्हें अन्य दुकानों पर नहीं जाना पड़ता। इन सभी विभागों का प्रबंध एवं संचालन एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में होता है। परिभाषा, डेफिनेशंस। जेम्स स्टीफन के अनुसार यह एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा भंडार है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता है। A big store engaged in retail trade of wide varieties of articles under the same roof, according to James Stephenson. बच्चों, यानी एक ऐसा विभाग या ऐसा भंडार जहां पर अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं और अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि इन सभी विभागों का प्रबंध एवं संचालन एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथों में हो, उसे हम विभागीय भंडार कहते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। नंबर 1, लार्जर एस्टेब्लिशमेंट। The term larger is used in the context that it is larger than an individual grocery or clothing store. A departmental store is made up of multiple sections and thus their size usually overrides that of any other type of stores. Departmental store can be part of even bigger establishment such as a shopping mall. Departmental store owned by large business chain are usually bigger than the standalone ones. Number 2, usually located centrally. The usual location of a departmental store is the center of city. If the city is a larger one, such as New York, it is bound to have multiple departmental stores.
In such cases, the store are located in the central area of each part of the city. Number 3, multiple department. A departmental store provide an end-to-end shopping services. That is, it can be used as a means for buying all type of goods. So from clothing to grocery, electronics goods to toy, a large range of products are found in it. All these products are separated by departmental so that the consumer can easily locate the product that they want to purchase. Number 4, wide range of offerings. As mentioned before, a departmental store is mostly likely to feature multiple type of goods on sale. It is meant to serve as a wholesome shopping experience. So multiple brand of a single product will also be found in a departmental store. This ensures that consumer who cater to specific brand will find them all under one roof. Number 5, singular management. Although a departmental store features a wide number of departments carrying multiple brands, they are all managed by one single organization or person. This central management take care of supply, supervision, accounts, communication and advertising for the departmental store. Number 6, high operational cost. Running a departmental store is a much costlier affair than running a single product based store. That the rent is usually higher and other costs occurred are advertising, constant upgradation of facilities and of course a much larger supply chain. Number 7, expensive use of advertisement. From outside the store decoration to billboard based advertising, a departmental store tries to advertise itself to consumer in multiple ways. Many departmental stores are provide holiday based discount and other promotional offers to attract consumers. हिंदी में उत्पत्ति। विभागीय भंडार का जन्म 1852 ईस्वी में फ्रांस में सबसे पहले हुआ और फ्रांस में सर्वप्रथम बॉर्न मार्के तथा लुर्वे नामक 2 विभागीय भंडारों की स्थापना हुई। विभागीय भंडार की स्थापना में ध्यान रखते हुए इसकी जो विशेषताएं हैं, नंबर 1 है स्थिति, लोकेशन। विभागीय भंडार की स्थापना के समय सर्वप्रथम ऐसे नगर और शहर का चुनाव किया जाना चाहिए जो आधुनिकता से प्रेरित हों। इसके बाद शहर में धनी लोगों की आबादी के आसपास इनकी स्थापना की जानी चाहिए। और अगर शहर बहुत बड़ा है तो ऐसे शहरों में 1 या 2 विभागीय भंडारों की स्थापना की जा सकती। नंबर 2, सुविधाएं, फैसिलिटीज। विभागीय भंडार के लिए एक विशाल भवन होना चाहिए ताकि उनमें अनेक विभाग बनने के साथ साथ ग्राहकों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। इन सुविधाओं में मुख्यतः विश्राम गृह, डाकघर, टेलीफोन, तार घर, वाचनालय, जलपान गृह आदि आते हैं। नंबर 3, सजावट। विभागीय भंडार के विभिन्न विभागों की अलग अलग तरीके से सजावट की जानी चाहिए। भवन को अंदर और बाहर दोनों जगह से सजाया जाना चाहिए।
बाहर की सजावट ऐसे होनी चाहिए जो ग्राहकों को आकर्षित कर सके। ग्राहकों में अधिक रुचि पैदा करने के लिए मनोरंजन का विशेष प्रबंध भी होना चाहिए। नंबर 4, क्रय और विक्रय पद्धति, परचेज एंड सेल प्रोसीजर्स। सभी विक्रय विभागों द्वारा आवश्यकता अनुसार वस्तुओं के आदेश विक्रय प्रबंधक के माध्यम से क्रय प्रबंधक को भेज दिए जाते हैं। क्रय प्रबंधक माल का आदेश देता है तथा जब माल भंडार गृह में आता है तो आदेश से मिलान जांच की जाती है। इसके बाद माल बिक्री के लिए संबंधित विभागों में भेज दिया जाता है। नगद बिक्री के लिए विभिन्न विक्रय कर्ता ग्राहकों को 2 प्रतियां कैश मेमो की देते हैं। इनमें से एक प्रति रोकड़िया भुगतान केस में रख लेता है तथा रोकड़िया यानी कैशियर, दूसरी प्रति भुगतान कर दिया जाता है। पेड शब्द वहां पर लिख दिया जाता है। इसके बाद ही टोकन भी ग्राहकों को दिया जाता है। दुकान से बाहर जाते समय ग्राहक टोकन द्वारपाल को देता है और वह अपना सामान वहां से प्राप्त कर लेता है। विभागीय भंडार पद्धति से उधार बिक्री की प्रथा ना के बराबर होती है, यानी यहाँ पर जो सेल है वो नगद ही होती है, नगद बिक्री यहाँ पर होता है। नंबर 5, कर्मचारियों की नियुक्ति। इस कार्य के लिए कर्मचारी नियुक्ति प्रबंधक द्वारा रखे जाते हैं। कर्मचारी प्रबंधक को देखना पड़ता है कि प्रत्येक विभाग के लिए योग्य कर्मचारी नियुक्त किए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उनके प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया जाए। कुछ विभागीय भंडार या डिपार्टमेंटल स्टोर की इमेजेस। डिपार्टमेंटल स्टोर जेपी डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से, इसी तरह से एक गारमेंट्स डिपार्टमेंटल स्टोर, कपड़ों का विभागीय भंडार जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग विभाग और कॉर्नर बनाए गए हैं। और ये जो विभागीय भंडार है इनमें बच्चों ध्यान दें कि वस्तुएं खुद पसंद करके खुद ही कैरी करना पड़ती है। वहां पर ट्रॉली या बास्केट्स होती हैं। एक और इमेज डिपार्टमेंटल स्टोर की। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने इसे एंजॉय करते हुए अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।